ان کے پاس بھی MP فنڈ سے، میرے پاس بھی MP فنڈ سے. میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ نیا زمانہ ہے، آج کل ہر فیسلٹی ہے. میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ پہ جائیں، لوک سبھا کے، وہ انٹرنیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے MP فنڈز کا استعمال کیسے کیا اور میں نے MP فنڈز کا استعمال کیسے کیا. میں لوگوں سے کہوں گا کہ ان کا اور میرا کمپیریزن کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ انہوں نے زیادہ ڈیولپمنٹل کام کیے کہ میں نے ڈیولپمنٹل کام کیا. سینئر نیشنل کانفرنس لیڈر علی محمد ساگر کا دعویٰ ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد ریاست کی سبھی 6 پارلیمانی سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گا. ساگر سری نگر کے جامع مسجد علاقے میں پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے تھے. PDP پر نشانہ سادھتے ہوئے ساگر نے کہا کہ وہ کھوکھلے نعرے دے کر ووٹروں کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے. ساگر نے کہا کہ ریاست کے ووٹر صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتے ہیں. ادھمپور لوک سبھا حلقہ انتخاب سے NC کانگریس امیدوار غلام نبی آزاد کے حق میں مہم چلانے کے لیے نیشنل کانفرنس لیڈر اور وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے کٹھوعہ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ لوگ آزاد کے میدان میں آنے سے کافی خوش ہیں اور وہ آزاد کو بھاری اکثریت سے جتانے کے لیے ہر طرح سے کام کریں گے. جو بھی غریب آدمی ہے، شریف آدمی ہے، بے کس ہے، بیچارہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات برادری کا ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ اس وقت غلام نبی آزاد کو چاہتا ہے. وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کے اثر میں آ رہا ہے، کسی بھی ویو کے اثر میں آ رہا ہے. یہاں پہ بلا لحاظ مذہب و رنگ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ غلام نبی آزاد جو ہے وہ یہاں سے کھڑا ہوا ہے اور وہ جیتے. سامبا میں کانگریس کارکنوں کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں پارٹی ورکروں، پنچوں اور سرپنچوں اور کچھ سرکردہ شہریوں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ جموں پنچ سے پارٹی کے امیدوار مدن لال شرما کے حق میں ہر سطح پر مہم چلائی جائے. اس موقع پر سابق وزیر S منجیت سنگھ بھی موجود تھے. کٹھوعہ میں BJP کارکنوں نے پارٹی امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے حق میں گھر گھر جا کر مہم چلانے کا آغاز کر دیا ہے. اس سلسلے میں پارٹی کارکنوں نے مکھرجی مارکیٹ کٹھوعہ میں دکانداروں سے BJP کو ووٹ دینے کی اپیل کی. اس موقع پر BJP لیڈر راج ساگر بھی موجود تھے. پارٹی کارکنوں کا کہنا تھا کہ مرکز کی UP حکومت اور ریاستی سرکار عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام ہوئی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. سالڈ سولر دیش کی سب سے بڑی سولر لائٹنگ کمپنی اب دے گی سولر ہوم لائٹنگ J&K بینک سے سبسڈی اور ایزی فائنینس پر. اگر سیمنٹ جنگ روکت نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. اپنے سپنے دنیا سے بھی بڑے ہیں، انتظار ایک موقع کا کرتے ہیں، زندگی کی چوکھٹ پہ ہاتھ کھڑے ہیں، بھارت کے مضبوط ہاتھ ہم سب ہیں ایک ساتھ. یوا ہے بھارت کے مضبوط ہاتھ. ہر سال 2 کروڑ یواؤں کو ملے گی ٹریننگ اور روزگار کے اوسر اور ہر ضرورت مند یوا کو اسکالرشپ. کانگریس کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ. ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی. Integral University Admission Notification 2014 for Management, Engineering, Architecture, Pharmacy and Medical Science courses. Log on to www.integraluniversity.ac.in. Integral University Lucknow, a seat of excellence. ہماری بیٹیوں کو سرکشا نہ دے پانے والوں جنتا معاف نہیں کرے گی. چلو حالات بدلے، دیش کی سرکار بدلے، بھاجپا کو ووٹ دے. اب کی بار مودی سرکار. گولڈی مسالے جو بھی کھائے گا واہ واہ کرے گا. رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں بس چلتے ہیں، دیش کے ہر پیٹ کو یہ بھرتے ہیں، مٹی کو سونا یہ ہاتھ کرتے ہیں، بھارت کے مضبوط ہاتھ ہم سب ہیں ایک ساتھ.
किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर पीर आफाक अहमद ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही रियासत में जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। आफाक जडिबल श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी बागी की तीनों पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर सलमान सागर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्म हो जाएं। सलमान सागर श्रीनगर में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करें। उधमपुर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तश्कील दी गई हैं। स्क्वाड ने मुख्तलिफ शहरों पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। हर टीम में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफर और 3 से 4 पुलिस एहलकार शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रदीप सिंह का कहना है कि ज़ाब्ते अखलाक की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर शुदा इलेक्शन ऑब्जर्वर ने डोडा का दौरा करके इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर डोडा ने मुख्तलिफ अफसरान, हिफाजती एजेंसियों और इंतखाबात के लिए तैनात अमले से खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान ऑब्जर्वर को पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों और इस सिलसिले में किए गए इंतजामात से भी आगाह कराया गया। डाइट कुपवाड़ा की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में इलेक्ट्रल लिटरेसी की जानकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर लिंगेट, रमहाल और ब्लॉक राजवाड़ के पंचायत लेवल कोऑर्डिनेटर्स मौजूद थे। इस बेदारी कैंप में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और नोडल अफसर स्वच्छ भारत मिशन ने वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से मुताल्लिक जानकारी फराहम की। कैंप में वोट के इंदराज और दीगर उमूर से मुताल्लिक भी जानकारी दी गई। इसको कहते हैं, दूसरा होता है इसको कैटमैच हुआ है। अनंतनाग में मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता दर्जनों साथियों ने जिला इंतजामिया अनंतनाग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। एहतजाजी साथियों का कहना था कि इनको पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के अमल को अक्सबंद नहीं करने दिया गया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी ने उन्हें डीसी ऑफिस के अंदर दाखिल तक नहीं होने दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के अदम ताउन पर नाराजगी का इजहार किया है। दूसरी जानब जिले के एडिशनल डीसी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इस सिलसिले में कहा कि डीसी के चैम्बर में जगह की कमी की वजह से सहाफियों को बाहर रहने की तलकीन की गई थी, लेकिन न कि इन्हें अक्सबंदी से रोका गया। जिला बारामूला में उड़ी के मची करंड इलाके के लोग जमीन खिसकने से परेशान हैं। जमीन खिसकने से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा है और लोगों को दूसरे मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। मची करंट के लोगों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लोगों का कहना है कि इलाके में एक सड़क की तामीर नामुनासिब तरीके पर किए जाने से जमीन खिसक रही है। लोगों का कहना है कि सड़क के लिए जमीन का कटाव सही ढंग से नहीं किया गया और बाद में सड़क को सालों तक किसी ने कोई देखरेख नहीं की। मुताल्लिका सड़क में भी शुगा पड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुताल्लिक महकमे को आगाह किया, मगर उन्होंने सिर्फ कागजी काम किया और लोगों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। माछीकरण बर्बाद हो चुका है। माछीकरण में कोई रहने की ख्वाहिश नहीं रही है। यहाँ से कोई रास्ता है, यहाँ से कोई रोड है, वो यहाँ का सब बर्बाद हो चुका है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई मुलाजम आया नहीं है, कोई मिनिस्टर आया नहीं है, यहाँ पर किसी ने देखा नहीं है। देखिए कि हम
बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, रहने के काबिल नहीं है। कोई मकान पीछे से अंदर आया है, कोई आगे से निकल गया है। तो हमें मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारे रहने के लिए कुछ न कुछ जगह का इंतजाम माकूल किया जाए। जी भाई, इस वालों को हमने पहले बोला था ये नालियाँ क्लियर करो, या जहाँ दीवार लगती थी वहाँ दीवार दो। नीचे इन्हें की जगह जो फर्स्ट मोड में हमने आपको दिखाया उसमें इन्हें उनको बोला था क्रेट लगाओ या कोई दीवार दो, इन्होंने दीवार नहीं दी। उसकी वजह से खिसकते खसरा नंबर 256 में 18 साल की 18 कनाल जमीन फट गई। बाकी इन्हें क्या, अगर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, जगह जगह से रोड फट गया है, काफी नुकसान हो। उधर मूसलाधार बारिशों के दौरान दारपुरा लोलाब में जमीन खिसकने से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन का मुतालबा है कि पीसीआर गिराने के नतीजे में उन्हें हुए नुकसान का फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में चट्टाने खिसकने के अलावा मकानों के गिर्द तामीर बंद भी तबाह हो गए हैं, जिससे मकीनों को जबरदस्त तशवीश हुई है। उनका कहना है कि इसी दौरान रुकन असेंबली लोलाब एडवोकेट अब्दुल हक खान ने भी सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। तकरीबन 3-4 मकान हैं जिनको शदीद नुकसान पहुंचा है और पस्सियां गिर आई हैं और इनके बचाव के लिए कोई तदबीर इस वक्त हो नहीं रही है। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि न कोई हुकूमत का कारंदा इसमें कोई एक्शन ले रहा है, न कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई इसके लिए कोई पैसा मुहैया किया जा रहा है या कुछ। बदकिस्मती से कुछ हो नहीं रहा है, जो अफसोस की बात है। और मुझे यकीन है शायद आपकी वसादत से आप हुकूमत के काम में जू रहेंगे और उनको याद पड़ेगा कि यहाँ भी कोई बसने वाले हैं जिनके जान माल को खतरा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। You are the runner in the long race called life. You decide the victory or defeat it. Learn, grow and grow for the long race. Accomplish your goals and chase your dreams. RIMT, Education for Life. युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। अब बहुत हो गया, बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार।
ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दराहमा गांदरबल में माकूल ड्रेनेज निजाम के फुकदान से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में एक ड्रेनेज खोदी गई मगर 5 माह से इसका काम रुका पड़ा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इधर जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। ड्रेन ये वनस कर एसिडेंट साहब फोन या जे साहब फोन तम फोन रेस्पॉन्ड कर कि तौर गु कत गु बदकिस्मती सान कि सीएम सज कॉन्स्टिट्यूंसी तम पे पुरसान ये बे DC साहब दरवाज तल। In case there is any such spot जहाँ पे manhole जो cover नहीं है, we will immediately take action and direct them to take care of that also. मैंने already instructions convey की हैं और जहाँ तक मेरी information है, they have taken steps. लेकिन अगर ऐसी कोई जगह है, we'll rectify it immediately. MLA इंद्रवाल ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर छात्रों का दौरा करके मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। तहसील छात्रों में एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम है और यहाँ दूर दराज इलाकों से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। जरूरी ने छात्रों के BMO को हिदायत दी कि मरीजों को बेहतर खदमात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। कुछ मरीजों ने इलाके के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की कमी दूर करने की मांग की है। महलपुरा पटन बारामूला के लोगों ने महकमा उमर सार्फिन के खिलाफ DC दफ्तर बारामूला में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि महकमा इलाके को राशन फराहम नहीं कर रहा है। महलपुरा के लोगों का इल्जाम था कि उन्हें बहुत कम राशन फराहम किया जा रहा है और वो भी ज्यादा रेट पर। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस मामले में मदाखलत करने और मामले की जांच करने की अपील की। जिला पुलवामा के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दफ्तर में मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मजदूरों का इल्जाम था कि उन्हें लेबर रजिस्ट्रेशन कराने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल से लेबर ऑफिस पुलवामा में इनकी रजिस्ट्रेशन इल्तवा में पड़ी है और पुलवामा में तैनात लेबर ऑफिसर और इंस्पेक्टर अक्सर बेशतर मजदूरों से तल्ख कलामी करते हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान लेबर ऑफिस पुलवामा पर ताला भी चढ़ा दिया। जिला पुलवामा के अरिहल के लोगों ने बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पहले पुलवामा शोपिया शाहराह पर धरना और बाद में पुलवामा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में भी एहतजाज किया। अरिहल के लोगों का कहना है कि उनका इलाका गुज़श्ता 6 माह से बिजली सप्लाई से बिल्कुल महरूम है। उनका कहना है कि महकमा बिजली सार्फिन से बिजली फीस बराबर वसूल कर रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा मुताल्लिकीन को आगाह किया मगर कुछ नहीं किया गया। कस्बा डोडा के मजाफती इलाकों फुरकानाबाद घट अरनोड़ा भिजोर के लोगों ने महकमे तामीरात आमा के जेर तामीर सड़क पर काम बंद कराया। लोगों ने बाद में इन इलाकों को जाने वाली वाटर सप्लाई उसकी अज खुद मरम्मत की और 8 रोज बाद पानी सप्लाई बहाल कर दी। लोगों का कहना है कि वो बाड़ी धरनाल सड़क की तामीर के खिलाफ नहीं है मगर तामीर के दौरान वाटर सप्लाई मुतासिर होने से हजारों की आबादी को मुश्किलात में न डाला जाए। हुदापुरा बारामूला से अछबल तक की सड़क खस्ताहाली की शिकार है। सड़क पर अगरचे चंद साल कबल ही मैगडम बिछाया गया था मगर सड़क अब नाकाबिल आमद रफ्त बन गई है। लोगों की शिकायत है कि महकमा R&B ने सड़क की तामीर में सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है। सड़क की खस्ता हालत से गाड़ियों की आमद रफ्त में मुश्किलात पैदा होने के साथ साथ पैदल चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मरहूम डॉक्टर अब्दुल अहद गौरव की बरसी के मौके पर JKLF की तरफ से श्रीनगर में ब्लड डोनेशन कैंप में इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान कई रजाकारों ने खून का अतिया देकर मरहूम अब्दुल अहद गौरव को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर अब्दुल अहद रियासत के मारूफ मुआलिज होने के साथ साथ JKLF के लीडर भी थे। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दिल्ली में एक तकरीब पर पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट और पार्टी का मंशूर जारी किया। भीम सिंह ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अवाम को धोखा दिया है और उनकी पार्टी बेहतर हुक्मरानी के लिए लोगों से वोट मांगेगी। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि कश्मीर एक्सप्रेस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ एक खास मुलाकात जरूर देखिए ठीक 8 बजे। आदाब।
कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में TDP ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, दोनों रियासतों की तरक्की का वादा, लेकिन अक़लियतों का बराए नाम जिक्र। MJ अकबर को यतीम खाना इस्लामिया के ट्रस्टी बोर्ड से हटाया जाए, कोलकाता के मुस्लिम दानिशवरों का मुतालबा। बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को कानपुर में अपनों की ही मुखालफत का सामना, बीजेपी ने बताया मुखालिफिन की साजिश। और खवातीन के ताल्लुक से समाज में बेदारी के लिए बेंगलुरु में रजाकार तंजीम की मुनफरिद पहल, ड्रामे के जरिए खवातीन की अजमत को किया उजागर। और सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर।
عام انتخابات کے لیے تلگودیشم پارٹی نے انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ اور آندھر پردیش کے لیے جاری کردہ علیحدہ انتخابی منشور میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا سرسری ذکر کیا گیا ہے۔ تلگودیشم پارٹی نے تلنگانہ اور آندھر پردیش کے لیے 2 علیحدہ انتخابی منشور جاری کیا۔ تلگودیشم نے دونوں ریاستوں کی ترقی کی نئی جہت کا وعدہ کیا ہے۔ تلگودیشم پارٹی نے سیماندھرا میں اقتدار ملنے پر کسانوں کا قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے انتخابی منشور میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کا صرف مختصر سا ذکر کیا ہے۔ مثالی مسلم امپاورمنٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ نائیڈو نے تلنگانہ کے لیے جاری کردہ انتخابی منشور میں آمدنی سے محروم مسجدوں کے اماموں کی ہر ماہ 3 سے 5 ہزار روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد جاری کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تاہم تلگودیشم پارٹی کے منشور میں مسلمانوں کی پسماندگی اور اہم مسلم مسائل کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سیماندھرا میں حج ہاؤس کی تعمیر کے مطالبے کو بھی تلگودیشم نے اپنے انتخابی منشور میں جگہ نہیں دی ہے۔ تلگودیشم کے انتخابی منشور سے دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھر پردیش کے مسلمانوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چندر بابو نائیڈو نے سیماندھرا کے اضلاع پر مشتمل آندھر پردیش کے لیے حیدرآباد کی طرز پر نیا دارالحکومت بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تلنگانہ اور آندھر پردیش کے کسانوں کو 9 گھنٹے بلا وقفہ بجلی فراہم کرنے کا بھی تلگودیشم نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چندر بابو نائیڈو نے خواتین کو تلگودیشم کی جانب سے راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 5 منٹ کے وقفے میں پولیس کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دونوں ریاستوں کے لیے جاری کردہ انتخابی منشور میں تلگودیشم نے ترقی کو ترجیح دی ہے۔ ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి, ప్రజల సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయాలి, ప్రజలకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది। అదే మరి తాత్కాలికంగా ఏం చేయాలో చేస్తూనే దీర్ఘకాలంలో ఆ ప్రజలు ఏ విధంగా మంచిగా ముందుకు పోవాలనో, అన్ని విధాల అభివృద్ధి కావాలనో అభివృద్ధి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ రోజు నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, ప్రపంచంలో భారతదేశానికి అన్ని వనరులు ఉన్నాయి, మానవ వనరులున్నాయి, అదే మరిగా సహజ వనరులున్నాయి। కానీ మనకు దురదృష్టం పాలకుల వల్ల కేంద్రంలో గాని రాష్ట్రంలో గాని 10 సంవత్సరాల పాలన వల్ల 20 సంవత్సరాలు ఎన్నికబోయే పరిస్థితి వచ్చింది। تلنگانہ میں تمام طبقات کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے نئی اسکیمیں متعارف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آروگیہ شری کی طرز پر NTR ہیلتھ اسکیم شروع کرنے کا بھی تلگودیشم نے اعلان کیا ہے۔ انتخابی منشور میں بتایا کہ غریب خاندانوں کو کارپوریٹ اسپتالوں میں 2,50,000 روپے تک مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ تحریک کے دوران خودکشی کرنے والے افراد کے اہل خانہ کو سرکاری ملازمت دینے کا بھی نائیڈو نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پسماندہ طبقات کو 100 نشستیں دینے اور 10,000 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ تلگودیشم کے انتخابی منشور میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن اور رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ پر عمل کرنے کے علاوہ اقلیتوں کو قرضداد کے اجرا سے متعلق وعدے کیے گئے ہیں، لیکن مسلم لیڈرز اور دانشوروں نے منشور میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو ناکافی قرار دیا۔ انہوں نے TDP کے منشور کو تلگودیشم سے BJP کے اتحاد کے عکس سے تعبیر کیا۔ بالکل ہی مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو نیگلیکٹ کر دیا ہے۔ رہا سوال تلنگانہ میں یا ان کے منشور میں جو انٹرسٹ فری لونز کی بات کہی گئی ہے، انٹرسٹ فری لونز کی بات اور اسلامک بینکنگ کی بات، اسلامک بینک کھولنے کا RBI نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہندوستان میں اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب یہ چندر بابو نائیڈو صاحب کی یہ بولنا کہ اسلامک بینک یہاں پہ کھولنا، یہ اسی طرح ہے کہ صرف ہم کو چاکلیٹ دے کے مسلمانوں کو بہلا کے پھسلا کے اپنے ووٹ کچھ ہو سکتا، کچھ ووٹ چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، وہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تلگودیشم جو ہے BJP کو سپورٹ کرنے والی ہے، تو نیشنل ایشوز ہمارے جو ہے نیشنل ایشوز میں تلگودیشم کی کیا پالیسی ہے وہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ